Okay, hi. This is lecture number 7. We will start with a few questions today, and after that, we'll do a little bit of more theory. And in the next class, I'll start with Lissajous figures. Okay, just try to attempt this question. So, um, Okay, so what this question is saying is that you have three sinusoidal waves of the same frequency, okay, and they are traveling with same speed along positive x direction. So you have three uh, SHM waves doing SHM. Then the amplitude of the waves are A by 2 and A by 3. And the phase constants of the waves are pi by 2, pi and 3 pi by 2 respectively. So if AM and phi m are the amplitude and phase constants of the wave resulting from the superposition of these three waves, which of the following is or are correct? Okay. There are two options correct here, one value of the amplitude and one value for the phase. So you can actually also try to attempt, the easier way to attempt this question is to think of these three waves as three vectors in x direction, okay? So then it will be a simple problem of vector addition. So we know that how to make phasors or how to plot vectors on a xy plane, right? So just use the values of these phase constants as phi and just draw these vectors. Draw three vectors of length a by 2 and a by 3. Okay. So the vector with length a has a phase pi by 2. So that means it's like parallel to the y-axis. Then your second vector has a length of a by 2, but it has a phase of pi. So that means it is like this. And then your third vector has a phase of 3 pi by 2. So just draw that means that vector is like this along minus y. So just take the x component and y component and try to solve. If you remember that when we were studying at SHM as a projection, the this circular vector, right? तो हमने x axis पे projection लिया था, so
So we got some kind of sinusoidal motion along the x direction. We can also vector which is rotating. So think of this like you have three different circular motions. So you have three different radiuses. One is a vector of radius A or phasor of radius A, which is rotating, and it is currently at pi by 2 angle. Then another SHM is represented by the circular motion. So here the length is A by 2, but this time it has rotated. Then you have the third vector or the third circular motion, जिसका length a by 3 है अब radius का, but this time the vector has rotated till 3 pi by 2. Okay, so just plot these three and try to find out what is the x component and y component. Okay, so I have two answers. So let me check the options here. Okay, Diptanshi, your answer is correct. Very good. Rajat, your answer is also correct. Very good. Akshada, your answer is correct. Very good. Okay, so just maybe 2 more minutes. So others who are trying, I'll give them 2 more minutes. Shoaib, your answer is correct. Very good. ठीक है, so इसको solve करने की कोशिश करते हैं. For those of you who are stuck, so what I said was that to say this is some x, this is some y, and let us draw these three vectors. So one has an amplitude a, and the phase constant is pi by 2. So that will be, let us say, somewhere here. Okay, so this angle is pi by 2. Then the second is a by 2 and the phase constant is pi. So a by 2, that means it's half of this. So it's somewhere here. And now this angle is pi. And the third one is a by 3 and the phase constant is 3 pi by 2. So a by 3 is, let us, sorry, I wanted to change the color. So that is somewhere here, let us say. And now this angle is, this is a by 3, this is a by 2, and this is a. Arey, this is, this is a. Okay, so now what you have to do is, let us just look at the components. So along x
component क्या हुआ, that is only minus a by 2 ही है, and along y it is a minus a by 3 which is 2a by 3. तो इन तीन वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा, let us call that am, that will be equal to square plus 2a by 3 square, and this will give you 5 by 6a. ठीक है, और ये जो रिजल्टेंट आएगा ये समवेयर ऐसे आएगा, ठीक है, because y component is 2a by 3, that means it's positive. X component is minus a by 2, which is negative. That means the tip of the vector will lie in the second quadrant. So you will have some resultant vector like this. ठीक है, so ये कुछ am magnitude का होगा और ये कुछ angle होगा which is phi m, which we have to find out. So then what is phi m? एक तो पाई बाय 2 है ही, ठीक है, उसके अलावा दिस एंगल, this why am I not, so this angle, okay, so that will be equal to tan inverse of a by 2 divided by 2a by 3, which will be pi by 2 plus tan inverse of 3 by 4. So the answer for this was A and B. Because I have one more answer. Sanchit, your answer was correct, as you must have seen now. Okay, so this is another way of solving these problems, because if you will now, start writing these like a cos omega t plus something something, so it will become a little bit complicated. So here we were able to represent these as, these phasors and then just take the total sum, because in the question it was given that they are traveling with the same frequency. Okay, so omega was same, so uski wajah se we know that the any change with time, so however these phasors are changing with time, that rate of change for all of the three phasors is equal. So that is why in this question we could use this approach. So when you are attempting a question like this, you have to read the question carefully and also see कि मतलब ओमेगा सेम दिया है या ओमेगा भी चेंज हो रहा है, बिकॉज इफ ओमेगा इज डिफरेंट फॉर थ्री ऑफ देम, सो मे बी दिस अप्रोच विल नॉट वर्क, बिकॉज देन द वेक्टर्स विल रोटेट विद डिफरेंट angular frequency. Okay, so let us try another question. Okay, so here it says that you have 6 simple harmonic oscillations, each of same frequency. So again, omega is same and they have equal amplitude. So we have 6 SHMs happening and all of them have same frequency and equal amplitude. Then the phase difference between any two consecutive oscillations is such that phi n minus 1 is equal to delta phi, which is a constant. So basically what it is saying is कि if you are taking one oscillation, let us say some oscillation 1, if you go to the next oscillation, that is oscillation 2, तो जो initial phase है that has changed by delta phi. तो अगर फर्स्ट ऑसिलेशन का फेज 0 था तो नेक्स्ट ऑसिलेशन का फेज डेल फाई हो गया, फिर नेक्स्ट ऑसिलेशन का फेज 2 डेल फाई हो गया, फिर नेक्स्ट ऑसिलेशन का फेज 3 डेल फाई हो गया. ठीक है, इस तरह से द फेज बिटवीन देम इज चेंजिंग by equal amount.
So if the resultant amplitude of the superposition is zero, so if we add these six harmonic oscillations and we know that the resultant amplitude is zero, so you have to tell then what is the value of del phi. Okay, so ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में फॉर्मूला निकाला था हमने इसका। तो अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, नहीं नहीं तो यू कैन ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व इट by finding the formula first. Okay, so the answer is, what is the answer? No, Sanchit, your answer is not correct. Okay, please see. The amplitude of the superposition is zero. Okay, so amplitude का formula एक निकाला था in the last class where हम study कर रहे थे that if we have n harmonic oscillators each with same frequency and equal amplitude, so we found कि what is the resultant amplitude of the superposition, final motion मतलब क्या आया था resultant SHM, वो हमने निकाला था last class में. Yes Sanchit, now your answer is correct. Yes, yes, it's correct. Rajat, your answer is correct. Adrish, your answer is correct. Diptanshu, your answer is not correct. Please check. Pranav, your answer is not correct. ठीक है, सो हमें दिया है सो हमें क्या दिया है, लेट अस राइट कि x1 इज लेट अस से द फर्स्ट SHM, तो let's say the amplitude is A0. ठीक है, it's some real valued function. So फिर x2 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज A0 E I ओमेगा t प्लस डेल फाई. ठीक है, दैट इज व्हाट दिस इक्वेशन इज सेइंग कि हर बार जो फेज इंक्रीज होगा वो डेल फाई अमाउंट से होगा. ठीक है, so similarly I would have some x3 which will be the real part of this function. ठीक है, एंड सिमिलरली आई वुड हैव सम x6. सो हमें दिया गया है कि देर आर ओनली 6 सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स. ठीक है, सो अगर इफ यू विल रिवाइज योर नोट्स ऑफ द लास्ट क्लास, सो हमें क्या फॉर्मूला मिला था एम्पलीट्यूड के लिए,
that was A naught sine n delta phi by 2 divided by साइन डेल्टा फाई बाई टू, कुछ इस तरह का फॉर्मूला मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या है? n is equal to 6 here because we have 6 harmonic oscillators, है ना। now what is given is कि ये जो resultant amplitude है this is equal to 0. This is what the question is saying, that if I add these 6 harmonic oscillators, so ये amplitude किस चीज़ का है? जो final हमें मिला, that is sum this motion. ये सारे ऑसिलेटर्स को ऐड करके कोई फाइनल मोशन मिला xt, उस xt का ये एम्पलीट्यूड है और ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पर n का वैल्यू 6 है बिकॉज वी आर एडिंग 6 SHMs. तो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, दैट यू हैव टू फाइंड आउट what is the value of del phi so that the resultant amplitude is equal to 0. ठीक है, so what we are going to do is we are going to put n is equal to 6. So if sine n del phi by 2 is equal to 0, that means this expression will go to 0. We know that, you know, del phi is not equal to 0, so this has some value we are assuming, and this is not equal to 0. So what if only this term is equal to 0? Then we know that this total amplitude will be equal to 0. Okay, so we will put n is equal to 6 and try to solve this. So we know that sine 0 होगा when n को 6 पुट कर देते हैं, 6 del phi by 2 would be equal to 0 or 2 pi, है ना। तो मैं no not 0 or 2 pi would be equal to what? When is sine 0? 0 pi जीरो पाई at 0 पाई और 2 पाई pi and 2 pi. ठीक है, तो मैं pi ले लेती हूँ स्टार्टिंग में. So this is simply 3. So then del phi is equal to pi by 3. हम 0 भी ले सकते हैं इसको, पर अगर 0 लेंगे तो that means del phi is 0. That means all of them are basically same oscillations. अगर यहाँ पर del phi का वैल्यू हम 0 ही निकाल लेंगे तो all of these are essentially same SHMs. ठीक है, तो in that case वो क्वेश्चन ही कंसिस्टेंट नहीं रहा, दैट del phi जो दो कंसेक्यूटिव ऑसिलेशंस हैं उनके बीच फेज डिफरेंस del phi कुछ नॉन ज़ीरो वैल्यू ही निकालनी है हमें। ठीक है, ज़ीरो एनीवे ऑप्शंस में दिया ही नहीं है, तो देन वी विल चेक फॉर पाई, और अगर पाई का भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है आपको तो देन यू विल चेक फॉर 2 पाई. सो ठीक है, तो थोड़ा ऑप्शंस को देख के भी यू कैन सी कि व्हाट काइंड ऑफ आंसर यू शुड चूज. सो यहाँ पर हम 0 भी ले सकते थे, पाई या 2 पाई, इस तरह से वी कुड हैव चेक्ड फॉर मल्टीपल वैल्यूज till we get any answer which is like matching with the options given here. ठीक है, सो दिस इज़ द लीस्ट सबसे छोटा वैल्यू है del phi का जिसके लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है. तो एक और फिर क्वेश्चन कर लेते हैं. So at a given point in space, the total light wave is composed of 3 phases, where P1 is equal to A, P2 is equal to this, and P3 is equal to this. So the intensity of light at this particular point is. So basically 3 phases दिए हैं और up is the total resultant of these 3 phases. तो अगर किसी एक पॉइंट पर
ये तीनों की तीनों फेजर्स ऐड हो रहे हैं, तो व्हाट इज द टोटल इंटेंसिटी दैट यू वुड गेट? तो इसका ऑप्शन है Sanchit, your answer is not correct. Adrish, your answer is correct. Okay, so what they are asking you is the intensity of light. So keep that in mind. ये जो भी phasors को add करोगे वहाँ से कुछ resultant amplitude मिलेगा. So you have to square that to find out the intensity. Akshata, your answer is correct. Rajat, your answer is not correct. Shoaib, your answer is not correct. Naman, your answer is not correct. Sanchit, your answer is again not correct. थोड़ा ना ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से देखो. मुझे लग रहा है कुछ लोग ऑप्शन गलत लिख लिख के दे रहे हैं मुझे. मे बी दे हैव द करेक्ट आंसर. हाँ संचित, नाउ इट्स करेक्ट. शोएब, इट्स करेक्ट. हाँ, तो ये गलती ना एग्ज़ाम में मत करना जो अभी 2-3 लोगों ने करी है, जो कि मुझे दिख रही है. यू हैड द करेक्ट आंसर बट यू टोल्ड मी द रॉन्ग ऑप्शन. तो एक बार आंसर टिक करने से पहले जस्ट स्पेंड सम टाइम रीडिंग द ऑप्शंस, क्योंकि ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो बहुत सिमिलर दिखते हैं और वो इसीलिए दिए जाता है ताकि आप जल्दी में गलती करें. ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. हमारे पास कुछ P1 दिया था. सो बेसिकली लेट अस से P इज़ द रिजल्टेंट ऑफ these three phasors is A plus A by 2
ये क्या है? दिस इज cos of theta. So this one will cancel out. So I will have 2a cos square theta by 2. Now this is what? This is the amplitude. Therefore intensity that will be 4a square. ठीक है, so answer was B. ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन होमवर्क कर लेंगे. मैम हाँ जी. मैम इस क्वेश्चन में मैंने क्या अप्रोच किया कि आई थॉट कि P2 और P3 आर एट सम एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू P1, हाँ. राइट? बिकॉज उनका cos थीटा वाला टर्म्स ही लेंगे हम लोग, रियल वाला. तो देन वी गेट वन वेक्टर अलोंग. बट यहाँ पे फिर ऐसा तो नहीं मैम कि फ्रीक्वेंसी का कुछ जिक्र नहीं है, इसलिए हम वेक्टर फेजर वाला यूज नहीं कर सकते. आपने क्या आपने क्या किया? एक तो प्लस थीटा में गया है ना? यस, दो है ना मैम प्लस थीटा में, एक P2 एंड P3. एक प्लस थीटा में गया, एक माइनस थीटा में गया ना? मैम माइनस थीटा की कंसीडर करेंगे यहाँ पे, जैसे अगर हम ई आई थीटा को ओपन करेंगे तो. नहीं, पर दोनों एंगल्स तो अलग हो जाएंगे ना. एक अगर थीटा, अगर ये वाला जो क्वेश्चन था, इसको फेजर के फॉर्म में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को, तो फर्स्ट होगा ए ई आई पाई बाई टू, इस टाइप का होगा फेजर. और सेकंड के लिए होगा ए बाई टू एक्सपोनेंशियल ऑफ आई पाई. ठीक है, और ऐसे ही थर्ड के लिए होगा ए बाई थ्री एक्सपोनेंशियल ऑफ आई थ्री पाई बाई टू. तो यहाँ पर जो थीटा होगा, एक का थीटा थीटा है और दूसरे का थीटा माइनस माइनस थीटा है. थीटा. ओके मैम. ठीक है, सो ये फेजर्स आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा कि कैसे फेजर्स ड्रॉ करते हैं. तो ये थीटा, इसमें यू हैव टू टेक द साइन ऑल्सो इनटू अकाउंट. ठीक है, तो ये यस. माइनस थीटा करना पड़ेगा. ठीक है. अगर फेजर्स में कोई डाउट है तो आई वुड सजेस्ट कि स्लाइटली एक बारी कोई भी सिंपल बुक पढ़ लो. मैथमेटिकल फिजिक्स में भी होगा इनफैक्ट, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जब फेजर्स ड्रॉ किए होंगे ना, करंट और वोल्टेज का ड्रॉ करते हैं, और मतलब पढ़ा होगा बहुत डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक्स में, वहाँ पर भी होता है. एंड इफ़ यू स्टिल हैव सम डाउट, तो मैंने लास्ट टाइम आई थिंक एक पेज लिख के दिया था बच्चों को कि फेजर्स कैसे ढ्रॉ करते हैं. तो आई कैन गिव यू दैट इफ़ यू नीड दैट. पहले एक बार ही पढ़ के देख लो आप. ठीक है, इफ़ यू फील यू स्टिल नीड इट तो मैं वो ढूंढ लूँगी. मैंने लास्ट ईयर आई रिटन वन पेज हैंड आउट कि हाउ टू ड्रॉ फेजर्स एंड हाउ टू इंटरप्रेट देम. पर अभी मतलब टेंशन मत लो, इट्स जस्ट द स्टार्टिंग. सो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी रिवाइज हो जाएगा व्हेन यू विल डू इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो. ये क्वेश्चन भी पता नहीं कोई एग्ज़ाम में आया था, मैं भूल गई यहाँ लिखना कौन सा एग्ज़ाम था. सो यू हैव टू वेव्स विद इक्वेशंस. इक्वेशंस मतलब वही SHM का फॉर्म दिया है. y1 a साइन kx माइनस ओमेगा टी एंड y2 इज a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, एंड दे आर इंटरफेयरिंग. तो इंटरफेरेंस बोला है या फिर सुपरपोजिशन बोला है, दे आर द सेम थिंग्स. ठीक है, इंटरफेयर भी कर रहा है तो ऐड कर रहा है. ठीक है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिवली वो तो बात अलग हो गई, बट इंटरफेरेंस एंड सुपरपोजिशन कैन बी यूज्ड फॉर द सेम फिनोमिना. ठीक है, so the combined wave also has an amplitude a. So the phase difference between the two initial waves, so you have to find out the value of phi.
तो इसको इजी तरीके से करने का मैं एक वो देती हूँ आइडिया। क्या करूँ, ये साइन का अभी सबमिशन करने मत लग जाओ, हमने कॉस में ऑलरेडी इसको सॉल्व किया है। तो यू कन्वर्ट दीज साइन फंक्शंस इनटू कॉस फंक्शन, ठीक है, फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाएगा। सो जस्ट डू नॉट स्टार्ट एडिंग जैसे लास्ट टाइम हमने किया था। I already have one answer, but let me see कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या आया था। मेरा ऑप्शन आया था रजत, योर आंसर इज़ नॉट करेक्ट, कुछ गलती हुआ है। दीप्तांशी, योर आंसर इज़ करेक्ट, वेरी गुड। ये एक्चुअली मुझे होमवर्क प्रॉब्लम देना था आज, ये वाला और एक और, तो मैं वो इंसर्ट कर देती हूँ। इफ those of you who have solved this can try this in the meantime. No, Pranav, your answer is not correct. Sanchit, your answer is also not correct. Yes, you can use yesterday's. हाँ, तो दीप्तांशु बोल रहा है कि वी कैन यूज़ कल का जो फॉर्मूला था फॉर सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। यस, यू कैन यूज़ दैट। नमन, योर आंसर इज़ नॉट करेक्ट। तो ऐसा करते हैं, आई विल गिव सम टाइम फॉर यू टू अटेम्प्ट दीज टू। तो इनका आंसर जो है वो मैं इस पीडीएफ में लिख के दे दूँगी, तो ये होमवर्क ही ले लो। आज जो थोड़ा सा पढ़ना है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये होमवर्क प्रॉब्लम ही ले लो, क्योंकि मैंने अभी टाइम देखा 6:15 हो रहा है। तो ये कई तरीके से हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने 2-3 तरीके से ऑलरेडी देख लिया है कैसे अप्रोच करते हैं प्रॉब्लम्स को, तो जस्ट थिंक अबाउट इट। एंड सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। हियर यू हैव 3 SHMs, यहाँ पर भी फेजर्स वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा डायरेक्टली। तो फर्स्ट जो फेज़र होगा उसका एम्पलीट्यूड 1 है, सेकंड का 0.5 एंड थर्ड का 0.25, ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड, प्रणव, योर आंसर इज़ करेक्ट नाउ, वेरी गुड, ठीक है। सो और जो फेजर्स हैं उनके एंगल्स दिए हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं द फेज ऑफ द सेकेंड रिलेटिव टू द फर्स्ट इज़ 30 डिग्री। सो अगर हम फर्स्ट का फेज 0 मान लें, ठीक है, तो सेकेंड का 30 है, और थर्ड का सेकेंड के रिस्पेक्ट में 60 है, मतलब फर्स्ट के रिस्पेक्ट में 90 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यू हैव टू ड्रॉ दीज फेजर्स एंड जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट दैट व्हाट इज़ द रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एंड फेज। आई हैव वन मोर आंसर। अक्षदा, योर आंसर इज़ करेक्ट, ठीक है। तो मैं इनके आंसर्स ये पीडीएफ में दे दूँ या अभी लिख दूँ? अभी लिख देती हूँ। तो आप ये अटेम्प्ट करना, ठीक है, खुद से करना थोड़ा टाइम निकाल के। अगर नहीं होता है तो आई विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास जो सैटरडे को होगा। आई विल सॉल्व दीज। सो इसका आंसर तो बी है, और इसका आंसर मेरा क्या है, इसमें एम्पलीट्यूड है okay, I'm sorry, I don't know what happened. Are you there? Can you see anything? Because my system is um, Yes, ma'am. what can you see? I can't see anything on my Blank. screen. Blank. Blank, no? Yeah, Some blank is ma'am. it's stuck. Wait, let me reopen this.
Okay, can you see anything now? Yes, ma'am. One note. Okay. Okay, so I don't know what happened. Ekdam se everything froze. So amplitude I got was 1.52 centimeters, and phase which I got here is 19.23 degrees. So you will have to use a calculator to solve this question, okay? तो आज जो पढ़ना है वो अभी हम पढ़ लेते हैं. ये दोनों होमवर्क प्रॉब्लम्स हैं. आपसे अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में आई विल सॉल्व. जस्ट गिव सम टाइम टू अटेम्प्ट दीज टू. तो आज व्हाट आई वांट टू डू इज़, एक तो आई वांट टू स्टडी, जैसे लास्ट क्लास में हमने किया था दैट वी हैड टू एस एच एम्स विच वर ऑसिलेटिंग विद सेम ओमेगा, एंड द एक हमने केस स्टडी किया था जिसमें एम्पलीट्यूड और इनिशियल फेज डिफरेंट था. 2 एस एच एम ऐड किए थे, और फिर हमने एक सॉर्ट ऑफ थोड़ा जनरल केस स्टडी किया था जिसमें n सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स थे. सबका एम्पलीट्यूड सेम था, फ्रीक्वेंसी सेम था. the only cheese the only thing that was changing was the phase between these SHMs. ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, we are going to study the beat phenomena. So this will have application when we will study the sound waves वाला portion. जब करेंगे वहाँ पर I will not do these calculations. So basically अब हम क्या करेंगे, beats कब बनेंगी, beat कब बनेगी when you will have two frequencies or two oscillations of near about frequency. ठीक है, तो आज हम पहले स्टडी करेंगे कि दो ऑसिलेटरी मोशंस हैं, 2 SHMs हैं, और दोनों का फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो किस टाइप का रिजल्टेंट मोशन मिलेगा. और फिर एक उसका जनरलाइज्ड फॉर्म स्टडी करेंगे जिसमें आई विल हैव n नंबर ऑफ सच ऑसिलेटर्स. सो ये 2 चीज़ें आई वांट टू डू टुडे. अभी मे बी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, बट दिस विल हेल्प यू व्हेन वी विल स्टडी साउंड वेव्स. ओके, so today I want to do oscillations. Having different frequencies या फिर beats. ठीक है, so we will study these today. So इसमें first case हम करते हैं. So what I'm saying is that I have 2 SHMs. So let me take one as A1 cos omega 1t. So I have 2 frequencies. ठीक है, एक frequency omega 1 होगा और दूसरा frequency omega 2 होगा. So 2 SHM है मेरे पास. Second is x2, which is some A2 cos omega 2t. ठीक है, यहाँ पर एक phi1 भी ले सकते हैं, यहाँ पर एक phi2 भी ले सकते हैं, which are the initial phases. But to make the calculation simple, I am just going to assume that these two are equal to 0 at the moment. ठीक है, so then I want to find out that what happens. So again these two are collinear oscillations. एक ही मैं डायरेक्शन में उनको ऐड कर रही हूँ. आई एम नॉट अभी तक लिसाचेस फिगर्स में हम नहीं गए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, जहाँ पर आई हैव वन ऑसिलेशन एक्टिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड द अदर ऑसिलेशन अलोंग एनी अदर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जैसे कि वाई डायरेक्शन. तो यहाँ पर एक्स टी हमें फाइंड आउट करना है, विच इज़ द सम ऑफ दीज टू. ठीक है, सो तो जब इस तरह का 2 SHM हमें ऐड करना है जहाँ पर वी हैव 2 different frequencies, तो यूजुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन कम्स इनटू पिक्चर. तो यहाँ पर हमें जो रिजल्टेंट मोशन मिलेगा उसका एम्पलीट्यूड भी टाइम के साथ चेंज होगा, उसका फेज भी टाइम के साथ चेंज होगा. तो इट विल नॉट बी अ वेरी सिंपल सॉर्ट ऑफ मोशन टू लुक. चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाएंगी पहले से. ठीक है, तो इस तरह का प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ some modulation frequency or some average frequency. तो हम क्या करेंगे, we will define some other 2 new what you say 2 other new
वैल्यूज़ और पैरामीटर्स, ठीक है। सो हम पहले डिफाइन करते हैं कुछ ओमेगा ए डिफाइन करते हैं, विच वी विल से इज़ द एवरेज frequency. So we have two frequencies omega 1 and omega 2. अगर उन दोनों का मैं average calculate कर लूँ तो I am saying that that quantity is omega a. So that is some average value of the frequency, ठीक है। And second quantity हम define करेंगे the modulation frequency. So I will call this omega m. M stands for modulation. सो इसको मैं क्या डिफाइन करूँगी, एंड आई एम चूजिंग दैट ओमेगा 2 इज एक्चुअली ग्रेटर देन ओमेगा 1. सो आई एम गोइंग टू से दैट दिस इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसीज डिवाइडेड बाय 2. ओके, सो अगर हम ये दोनों पैरामीटर्स ऐसे डिफाइन करते हैं तो नाउ वी कैन रीराइट ओमेगा एंड ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 इन टर्म्स ऑफ ओमेगा ए एंड ओमेगा एम, ठीक है। सो हम क्या करेंगे अभी, इफ आई विल टेक दिस इक्वेशन, लेट अस नंबर दीज इक्वेशंस, लेट अस से 1 2, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन से आई रोट द फर्स्ट दिस equation and let me write the second equation like this. So what I will do is I will simply add these two. So twice of omega 2 is equal to या फिर ओमेगा 2 is equal to omega a plus omega m. तो इस तरह से भी I can now write my omega 2. एंड दूसरा क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को we will subtract. So I want to subtract, so I will change the signs. So then I will get twice of omega 1 is equal to omega a minus omega m, or omega 1 is equal to omega a minus omega m. So let me say this is 3 and this is 4. मैम एक बार आप इस टॉपिक की एक बार स्टार्टिंग पे जा सकते हैं 2 मिनट के लिए, एक्चुअली कोई दरवाजे पे आया था, उनको सुना था, बस ये नोट करना है। अच्छा, ओके। ठीक है, ओके ठीक है, ओके। So now I want to find out this x of t which is equal to x1 plus x2, ठीक है। So अब जो इक्वेशन है x1 is a1 cos omega 1t because phi 1 को मैंने 0 पुट कर दिया है, एंड इसी एंड x2 is also a2 cos omega 2t, यहाँ पर मैंने phi 2 को भी इक्वल टू 0 पुट कर दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 का वैल्यू मैं इन वैल्यूज से इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 में जो मिला है उससे रिप्लेस कर दूंगी। तो देन आई कैन देन राइट दैट x ऑफ t विच इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 इज देन इक्वल टू a1 cos, यहाँ पर ओमेगा 1 था, सो ओमेगा 1 इज व्हाट w ओमेगा a माइनस ओमेगा m, सो आई विल हैव ओमेगा a माइनस ओमेगा m t, ठीक है, प्लस x2 was a2 cos omega 2t, ठीक है। सो यहाँ पर a2 cos, so omega 2 is equal to omega a plus omega m, so I'll just substitute that. So अब हम लोग क्या करेंगे, we'll apply the cos alpha plus cos alpha plus beta का formula and we'll expand the cos terms. Okay, so वो कर लेते हैं। So I'll have a1 cos omega at cos omega mt plus sin omega at sin omega mt plus a2
cos omega at cos omega mt minus sin omega at sin omega mt. Okay, so I'll have these 4 terms. So now what I will do is I will collect बेसिकली 2 टर्म्स ही हैं, cos ओमेगा at मल्टीप्लाइड बाय cos ओमेगा mt के 2 टर्म्स हैं, सो वो कलेक्ट कर लेते हैं. सो दैट इज a1 प्लस a2 cos ओमेगा at cos ओमेगा mt प्लस a1 माइनस a2, ये साइन के टर्म्स इकट्ठे कर लेते हैं, साइन ओमेगा at एंड साइन ओमेगा mt. ठीक है, सो अब हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन. सो अब हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है, सो हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट लेट a1 प्लस a2 cos omega mt is equal to am cos theta m. ठीक है, एक ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे और दूसरा कर देंगे sin omega mt is equal to am sin theta m. ठीक है, सो ये दोनों सब्स्टिट्यूशंस को भी कुछ इक्वेशन नंबर दे देते हैं. दिस इज 5 एंड दिस इज 6, so this is xt. So I am going to make these substitutions from equation 6 to equation 5. So using 6 and 5, I will write xt is equal to am cos theta m cos omega at plus am sin theta m sin omega mt. तो अब we can simply collect these and इसको concise way में लिख सकते हैं at plus theta m. ठीक है, so then this is the final. Sin omega 80. Ma'am, sin omega 80 it will be, I guess. अरे हाँ, m लिख दिया मैंने, this is a. Thank you. ठीक है, so माइनस होना चाहिए ना शायद बीच में. minus In the last equation, cos omega t minus theta n, I think. I have used यहाँ पे ना, Yes, sir. बिकॉज कॉस में उल्टा हो जाता है. ठीक है, सो देन दिस इज द फॉर्मूला आई एम गेटिंग. और तो कोई माइनस मिस्टेक में किया ना मैंने, प्लस था माइनस आया यहाँ पर. ठीक है, फिर ठीक है. सो अब द क्वेश्चन इज दैट ये जो इक्वेशन 7 है, ठीक है, इज this is this SHM? अभी हमें एक इक्वेशन मिल गई जो SHM जैसी दिखती है. ठीक है, बट इज दिस एक्चुअली SHM? जो ये रिजल्टेंट मोशन है, इज इट एक्चुअली SHM? So just look at equation number 6 and 7 and think about it a little bit, that is it SHM or is it not SHM? And a1 plus a2 और a1 minus a2 दोनों के लिए a मॉड्यूलेटेड कैसे आ रहा है? वो तो आ जाएगा, कैसे? बिकॉज साइन और कॉस है ना दोनों के साथ, दे आर नॉट द सेम फंक्शंस. कॉस का हाँ, वेरिएशन और मगर उनके जो एप्रोपो आगे लग रखा है वो भी cos थीटा m और sin थीटा m ही है. हाँ, तो इसका वैल्यू अभी हम निकालेंगे ना. वी हैव नॉट सॉल्व दीज इक्वेशंस. वी विल फाइंड आउट सम वैल्यू ऑफ am जो
यहाँ इस साइड में तुम्हारे पास कितने सारे टर्म्स हैं, A1 A2 एंड ओमेगा m. इस साइड में तो मैं 2 ही टर्म्स लाई हूँ. आई कैन राइट 2 unknowns by using some 3 constants, can I not? There are 3 terms here. A1 भी कुछ है, A2 भी कुछ है, omega m भी कुछ है. There are 3 quantities at play, but I am मैडम just फाई looking एम at तो 2. कांस्टेंट नहीं है। phi m का phi कहाँ है, थीटा m? हाँ मैडम थीटा है। हाँ, थीटा m तो कांस्टेंट नहीं है, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि is it a constant or what is it? It's not constant because यहाँ पर टाइम का वेरिएशन है. ये जो इक्वेशन नंबर 7 मिला है, ठीक है, आई एम आस्किंग यू इज दिस एन SHM? तो हमने जितना भी SHM पढ़ा है, ये सब्सटीट्यूशन तो एनीवे पॉसिबल है, उसके ऊपर तो डोंट डू एनी डाउट्स. यू कैन सब्सटीट्यूट दिस बिकॉज दीज आर 2 डिफरेंट फंक्शंस. एक कॉस का फंक्शन है, एक साइन का फंक्शन है. यू कैन डेफिनेटली राइट देम एज सम अदर constant, not constant, and as some other quantity multiplied by the cos of some other phase function, and similarly some other quantity multiplied by the sine of some phase function. That is completely possible. We will solve this equation and find out कि am और theta m का value क्या है, वो भी हम निकालेंगे, ठीक है. But what I'm asking is कि equation number 7 में मुझे जो equation मिला है, it looks like the equation of an SHM. But is it an equation of an SHM? तो SHM में हमने क्या पढ़ा है अभी तक कि जो एम्पलीट्यूड होता है AM होगा, अगर वो कांस्टेंट होगा तभी ये SHM होगा. और जो इनिशियल फेज होता है, जो फाई होता है, वो भी कांस्टेंट होता है. वो इनिशियल ही डिसाइड होता है, वो फेज बाद में टाइम के साथ चेंज नहीं होता है. टाइम के साथ जो भी फेज चेंज होता है वो ओमेगा टी टर्म की वजह से होता है. जब भी हमने SHM कंसिडर किया है, वी रोट A cos omega t plus phi. So here phi was a constant and A was a constant जो इनिशियल कंडीशंस से हमने निकाला था. जो भी SHM स्टार्ट होते वक्त इनिशियल कंडीशंस थी, उनसे वी फाउंड आउट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ phi, एंड ये दोनों टाइम के साथ चेंज नहीं हुए थे. सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग जो कि इस इक्वेशन में हमें चेक करना है. यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन नंबर 6 देखूँ, तो उसी इक्वेशन नंबर 6 से मैं देख सकती हूँ कि अगर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर A1 प्लस A2 कॉस ओमेगा MT, ये जो कॉस का टर्म है, इट विल चेंज विथ टाइम. So whatever is on the right hand side would also change with time. Only then these two equations will make any sense. You cannot have constant on one side and something changing with time on the other. So agar left hand side में this quantity is oscillating कुछ omega m frequency से, it is changing with time. So on my this side also, right hand side में भी am and theta m जो है, I cannot say that both of them are constants, or maybe neither of them are constant and both of them are some functions of time. So that means that this equation is not representing an SHM. SHM का basic condition जो हमने पढ़ा था, ठीक है, वहाँ पर एक साइनोसॉइडल ऑसिलेशन होता है, एक कॉस का फंक्शन होता है, बट उस फंक्शन का प्रॉपर्टी ये भी होता है कि उसका आगे जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड टर्म does not change with time, and the initial phase term also does not change with time. The only variation that happens because of omega t. ठीक है, so with that understanding and by looking at equation number 6, we can definitely say कि am and cos theta m, तो am या तो फंक्शन है कुछ टाइम का या फिर थीटा m कुछ फंक्शन है टाइम का. ओनली देन आई कैन से कि ठीक है, माई लेफ्ट साइड इज ऑल्सो चेंजिंग विद टाइम एंड माई राइट साइड इज ऑल्सो चेंजिंग विद टाइम. सो दीज इक्वेशंस मेक सेंस. सो दिस मोशन जो हमें मिला when I had 2 oscillations which were oscillating at different angular frequencies, omega 1 and omega 2. तो जब मैंने ऐसे दो जो ऑसिलेशंस थे उनको ऐड किया, तो मुझे सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं मिला, बट मुझे सम सॉर्ट ऑफ हार्मोनिक मोशन मिला. मतलब इट्स स्टिल सम काइंड ऑफ अ साइनोसॉइडल वेरिएशन. कुछ उसमें
oscillatory motion हो रहा है, but it is not a simple harmonic motion, because for simple harmonic motion my amplitude does not change with time. My initial phase is fixed at time t is equal to 0. After that it does not change. After that the only change in the sinusoidal function comes from the term omega t. Okay, it does not come from the phi phase, phi term starting में ही fix हो जाता है. It basically tells you the place from where you started your stopwatch. तो कहाँ पर at which displacement you decided that this is my time t is equal to 0, वो fix हो जाता है when you choose your a and when you choose your theta. ठीक है, so this is no, this is not an SHM, because am and theta m are not constants. So अब हम क्या करते हैं, we can also find out कि actually am का am का मतलब equation क्या है and theta m कैसे निकालेंगे. तो theta m तो simple है, that I can just take I can divide this equation by this equation. So I'll have tan of theta m is equal to something like this. So tan of theta m is a1 by a2 sine omega mt divided by a1 plus a2 cos omega mt. Okay, so this is going to be the form of theta m. So you can substitute these values and find some value of theta m. So यहाँ से मैं देख सकती हूँ that this sine omega mt and cos omega mt terms are there. That means theta m is definitely changing with time. It is not a constant function. And we can also calculate the value of am. तो उसके लिए what we'll have to do is we will have to take we will have to square this equation and square this equation, or maybe I should have numbered them something else. So let me call this. Okay. So I will square the first and second equations and add them. Square this and add. Okay, so when I will do that, what will I get? I'll get am square is equal to a1 square plus a2 square कुछ इस टाइप से मिलेगा जो, तो आप ये ट्राई कर लेना. तो स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकेंड इक्वेशन and add them together, so you will get something like this. This term is equal to cos of 2 omega mt. So I will have am square is equal to a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos 2 omega mt. Okay, here you are, na? So then this theta m is known as the modulated phase, modulated because it's changing with time, and this is your modulated amplitude. Okay, because this is also changing with time. This was equation 7, so let me call this equation 8 and 9. ठीक है, so यहाँ दोनों equation 8 and 9 से we can see that actually both am and theta m are a function of
दिस टाइम का एक फंक्शन है, वो कॉस के टर्म में वेरी हो रहा है एम्पलीट्यूड, और कुछ टैन ओमेगा एम टी का कुछ रिलेशन मिल जाएगा हमें, टैन थीटा एम इज इक्वल टू सम टैन ऑफ ओमेगा एम टी के हिसाब से इट्स चेंजिंग विद टाइम. सो बोथ ऑफ दीज आर नॉट कॉन्स्टेंट विद टाइम एंड दे आर चेंजिंग with and they are varying with time with an angular frequency of omega m. इसीलिए omega m को modulation frequency बोला था starting में, because this is the frequency with which theta m and omega m are changing with or are varying with time. ठीक है. So क्या करना था मुझे? Excuse me, ma'am. तो yes. Ma'am, please just once again explain why theta m and am both are varying with time. Theta m and theta, हाँ, because on the right hand side, see equation number 8 देखो, ठीक है. यहाँ पर a1 is some constant, ठीक है, a2 is some constant, so I have sin omega mt, और omega m क्या था, omega m is some modulation frequency. So this, अगर मैं कोई एक टाइम कंसिडर करूँगी, अगर मैं कुछ t का वैल्यू कंसिडर करूँगी, तो I will have some value for theta m from this equation, है ना. But if I'll change the value of t to some other value, ठीक है, तो I'll have some other value for theta m. तो इस तरह से for different t values ये जो फंक्शन होगा sin ओमेगा mt डिवाइडेड बाय cos ओमेगा mt, इसका वैल्यू अलग होगा. जैसे मैं टाइम चेंज करूँगी वैल्यू अलग चेंज हो जाएगा, उसकी वजह से थीटा m का वैल्यू भी अलग चेंज हो जाएगा. तो थीटा m इज़ नॉट कॉन्स्टेंट फॉर ऑल टाइम, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज़ चेंजिंग विथ t. For different value of t, it has a different value. Similarly, अगर इक्वेशन नंबर 9 को देखोगे, which is for the amplitude, वहाँ पर भी जो ये टर्म आ रहा है 2a1 a2 cos 2 omega mt, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, it is again varying with time t but with a frequency of 2 omega m. ठीक है. तो यहाँ पर भी अगर मैं t को 0 कंसिडर करूँगी तो इसका वैल्यू हो जाएगा कुछ और. अगर मैं t को टी 0 से ज़्यादा कुछ और कंसिडर करूँगी, जैसे टी इसको मैं पाई बाय 4 कंसिडर कर लूँ या समथिंग लाइक दैट, मतलब कोई भी अलग वैल्यू में कंसिडर कर लूँ, पाई बाय 2 ओमेगा कंसिडर कर लूँ जैसे, तो ये कॉस पाई का वैल्यू लग जाएगा यहाँ पे. ठीक है. तो देन मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज, इफ आई विल टेक t इज इक्वल टू 0, दिस टर्म विल बिकम +1, है ना. एंड इफ आई विल टेक t इज इक्वल टू पाई बाय 2 ओमेगा m, then this term will become -1. So डिफरेंट टाइम पर जो am का वैल्यू है वो डिफरेंट आ जाएगा. एक में आ जाएगा a1 + a2 और दूसरे में आ जाएगा a1 - a2. समझ रहे हो. तो उस तरह से क्या है, विद टाइम द एम्पलीट्यूड इज नॉट सेम. सो एज आई एम चेंजिंग टाइम, माई एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो चेंजिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम सेइंग दैट इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम. यही इसी इक्वेशन से दिख रहा है. ठीक है. Yes ma'am, thank you ma'am. तो इसको हम प्लॉट भी कर सकते हैं, जो कि अभी कर लेते हैं, सो दैट वी हैव अ लिटिल बिट मोर अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है. तो क्या करते हैं, सबसे पहले ठीक है. तो अभी हमें पता है ओमेगा ए क्या था. ओमेगा ए वॉज द एवरेज, तो दैट वॉज ओमेगा 1 + ओमेगा 2/2. सो जो दोनों फ्रीक्वेंसीज थे उनका जो एवरेज वैल्यू था दैट वॉज ओमेगा ए. एंड ओमेगा एम क्या था, इट वॉज द मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी, सो दैट वॉज ओमेगा 2 - ओमेगा 1/2, बिकॉज मैंने एज्यूम किया था दैट ओमेगा 2 इज़ ग्रेटर देन ओमेगा 1. ठीक है. सो these were the two equations जो हमने starting में assume कर रहे थे, and with that assumption we did all the calculations. So why अब we call it a modulation frequency, like this subtraction? because here no, देखो यहाँ equation number 8 and 9 में देखो, that is the frequency by which your theta is changing. So जो theta का modulation का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, that your phase is changing in a certain pattern. So how fast it is changing or how slow it is changing is decided by omega m. So that is the frequency of modulation. तो दोनों इक्वेशन 8 और 9 में देखो,
जो थीटा एम है और जो ए एम है, बेसिकली जो मॉड्यूलेटेड फेज है और जो मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड है, वो किस फ्रीक्वेंसी से मॉड्यूलेट किया जा रहा है. ओमेगा एम आ रहा है दोनों में, ओमेगा ए तो नहीं आ रहा है ना, ओमेगा एम का टर्म आ रहा है, तो वी आर कॉलिंग इट द मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी विद विच वी आर changing this either very fast or very slow. That will depend on the value of omega m, but that is how we are modulating our signal. तो ये सब तो पढ़ा होगा ना इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्या बात कर रहे हो? आर यू हियरिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम? आई डोंट थिंक सो. मैम मेरा सब्जेक्ट नहीं था इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मुझे नहीं पता. अच्छा ऑसिलेशंस okay. पढ़ा है मैंने, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था मैं. अच्छा ओके. सो इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब हाँ, अब तो ऑब्वियसली सिलेबस चेंज हो गया होगा, सो आई डोंट नो व्हाट syllabus people are studying nowadays, but when we were doing we also had this experiment in our lab जिसमें CRO पे we used to do this. We would we would have two frequencies which are near about, and we would try to add them and then look at the modulated frequency. हमारे actually exam में ही आता था. We had to do these experiments on CRO proper. So I thought that everybody read this, but maybe it's okay. सबका syllabus different होता है. So modulation का basically मतलब यही हुआ यहाँ पर, that how fast or how slowly you want to change your signal. So यहाँ पर omega m का value decide कर रहा है how fast or how slow I am changing the value of theta m and am. That's why it's called the modulation frequency. ठीक है. So मैं क्या कर रही थी, हाँ. So I was going to plot the signal. तो ये जो मैं अभी यहाँ प्लॉट कर रही हूँ ना, we used to do this experiment in lab and we used to see these plots on the CRO. CRO की स्क्रीन में दिखता था अच्छे से, and that used to be our मतलब proper experiment में, एग्जाम में भी we used to, I think I did this experiment only in my maybe first year electronics lab or something like that. So अब अभी तक हमने ये वाले assumptions किए that omega 2 is greater than omega 1. But now what I'm going to assume is that let me say that these are very near about. ठीक है? They are almost same, but still omega 2 is slightly a little bit more than omega 1. जैसे अगर एक का वैल्यू 1000 हर्ट्ज है, तो लेट अस से दूसरे का वैल्यू 990 हर्ट्ज है, तो मे बी सिर्फ 10 हर्ट्ज का डिफरेंस है. बिकॉज दिस, इसका मतलब है कि बहुत वास्ट डिफरेंस भी हो सकता है, दैट ओमेगा 2 इज़ 20,000 हर्ट्ज एंड ओमेगा 1 इज़ मे बी 15,000 हर्ट्ज. ठीक है. बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सच अ वास्ट डिफरेंस. लेट अस से दे आर वेरी नियर अबाउट, but still omega 2 is slightly greater than omega 1. ठीक है. So if I take this kind of a assumption that omega 1 is almost equal to omega 2, तो उसका मतलब क्या हुआ कि my omega m is actually quite small compared to omega a. तो omega a तो दोनों का average हो गया. So if you have 1000 and 990, and if you add them and take the average, you will get some value near about, you know, maybe 990 से कुछ ऊपर ही आएगा. तो when you will add them, and if you will take their difference, तो you will have 10 divided by 2, तो 5 hertz आएगा. और उसमें कितना आएगा, 990 plus 1000, 1990 divided by 2, करो कितना आता है. That will be 90. हाँ, 995, right? So one is 995 and the other is 5. ठीक है. सो मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम, जो कि सब्ट्रैक्शन करके हमने वैल्यू निकाला है, दैट इज एक्सट्रीमली स्मॉल कंपेयर टू द एवरेज वैल्यू. सो एक 995 आया, दूसरा 5 आया. तो इन दैट केस I can say that my omega m is very very small compared to omega a. ठीक है. तो now for this particular case, जब इतना नियर अबाउट डिफरेंस होता है, इवन इससे भी छोटा डिफरेंस होता है, 1 या 2 हर्ट्ज का ही डिफरेंस होता है दोनों फ्रीक्वेंसीज में. ये वैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. मैं जिस हर्ट्ज की बात कर रही हूँ दैट इज़ दिस न्यू. ठीक है. बट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, सो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग इन हर्ट्ज. तो जब बहुत नियर अबाउट वैल्यूज़ होता है, तो इन दैट केस यू गेट द बीट्स, और यू कैन हियर द बीट्स जो साउंड में ट्यूनिंग बॉक्स से निकालते हैं. सो यू कैन हियर दोज बीट्स. पर यहाँ पर अभी व्हाट आई वांट टू डू इज़ आई वांट टू प्लॉट दैट हाउ यू नो दिस वेव वुड लुक. अगर मेरे पास दो
एस एच एम्स हो रहे हैं, एक ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंड दे आर ऑफ द नियर अबाउट वैल्यू है उनका. तो इफ़ आई वांट टू सी कि किस तरह से रिजल्टेंट वेव मुझे मिलेगा, कैसा दिखेगा, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू प्लॉट. ठीक है. तो आई नो दैट ओमेगा ए बहुत फास्ट वेरी होगा कंपेयर टू ओमेगा एम. तो पहले आई वांट टू प्लॉट this variation. ठीक है. So I have time on my x axis and y axis में I am plotting the cost function. So so let us say that I have some fast varying oscillation. ठीक है. और अब मुझे ये भी पता है that my omega mt जो है that is a slow varying oscillation because omega m का वैल्यू बहुत कम है. Because my omega 1 and omega 2 are almost equal, so I know that their difference जो भी frequency आया है that is less. So let us say that it's going like this. ठीक है. So अब if I go to my this expression, ठीक है, तो यहाँ पर जो am I'm talking about equation 7. So if you go to equation 7, तो यहाँ पर एक cos का वेरिएशन हो रहा है which is omega a t करके. phi m को फिलहाल के लिए मतलब दिमाग से निकाल दो. Just think that phi m is maybe 0 or something. Just leave it for the moment. So just अभी हम यही देखते हैं am multiplied by cos omega a t. ठीक है. सो ए एम में ये वाला टर्म आया था इक्वेशन 9 में मुझे मिला था कॉस ऑफ 2 ओमेगा एम टी. तो मैंने सिर्फ ओमेगा एम टी प्लॉट किया है अभी. ठीक है. 2 का फैक्टर मैंने छोड़ दिया है बिकॉज आई जस्ट रफली वांट टू सी कि ये मॉड्यूलेशन होने के बाद रिजल्टेंट दिख कैसा रहा है. ठीक है. सो बेसिकली जो भी मेरा रिजल्टेंट है उसमें ये कॉस का फंक्शन ओमेगा एम टी का फंक्शन कॉस ओमेगा ए टी के फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है. तो I want to see कि how my resultant modulation would roughly look like. So I am not taking into account all the terms. I am just looking कि ये दोनों जो मेरे cos के functions हैं ये multiply हो रहे हैं in my expression. So roughly how my modulated signal will look like. ठीक है. So that would be जो मुझे अब resultant graph मिलेगा that would be roughly the multiplication of these two graphs. So उसका मतलब क्या हो गया कि so यहाँ पर it was crossing null. ठीक है. सो अब यहाँ पे क्या हुआ जो मैंने येलो में ड्रॉ किया है ना दैट इज़ एक्चुअली हाउ द सिग्नल इज़ गोइंग. बट व्हाट इज़ दिस शोन इन पिंक? दिस इज़ एक्चुअली दिस ए एम.
तो बेसिकली जो सिग्नल का एनवलप है, मतलब इफ़ यू विल हर एक पॉइंट पर जो वेव का ऑसिलेशन हो रहा है, अगर उसके पीक के सारे पॉइंट्स को तुम ऐड कर दोगे एंड यू विल ट्राई टू ड्रॉ द एनवलप ऑफ दिस वेव फॉर्म, तो दैट इज चेंजिंग विद इन एम्पलीट्यूड ए एम. सो ये दिस इज चेंजिंग लाइक कॉस ओमेगा एम टी के फॉर्म में इट विल बी मॉड्यूलेटेड. सो द जो भी कंबाइंड वेव रिजल्टेंट वेव था उसका जो एनवलप है दैट यू हैव मॉड्यूलेटेड विद दिस ए एम. ठीक है, और जो इनसाइड जो भी वाइब्रेशंस हो रहा है वो वाइब्रेशंस हो रहा है कौन सा फ्रीक्वेंसी से, ओमेगा ए. सो जो एम्पलीट्यूड है वो ए एम और ओमेगा एम के हिसाब से चेंज हो रहा है. तो इफ़ यू विल जस्ट लुक एट द एनवलप ऑफ दिस वेव, सो इट विल vary with the angular frequency omega m and the amplitude will vary like am. पर अगर जो येलो में जो वेव है अगर इसको देखेंगे तो इसका जो ऑसिलेशंस हो रहा है वो हो रहा है ओमेगा ए फ्रीक्वेंसी से. ठीक है, सो जो एनवलप है, एनवलप में कोई अलग से वेव नहीं है, इट इज़ जस्ट लाइक अ इमेजिनरी एनवलप आई एम थिंकिंग, एंड द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी मतलब जो एक्चुअल वेव है वो ये येलो में वाइब्रेट हो रहा है. ठीक है, सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट वेव दैट आई विल सी. ठीक है, सो दिस इज माई एक्स ऑफ टी विच वॉज इक्वल टू x1 प्लस x2. सो टाइम कितना हुआ है, मैं बहुत देर से बोल रही हूँ. अच्छा 2 ही मिनट बचा है. आई हैव वन क्वेश्चन. मैडम? वेट. हाँ मैडम ये थोड़ा ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी जैसा है ना? हाँ. तो ये एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी जब हम स्टडी करेंगे हम यूज़ करेंगे, एंड दैट इज़ द रीज़न दैट आई एम ट्राइंग टू स्पेंड सम टाइम हियर. बिकॉज जब ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी में जाएंगे तो आई विल टेक दिस अंडरस्टैंडिंग दैट यू ऑलरेडी नो दैट यू नो हाउ दीज टू साइनोसॉइडल मोशंस को अगर हम ऐड करेंगे विच हैव डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, तो रिजल्टेंट कैसा दिखेगा, किस टाइप का मोशन होगा, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो आई वुड प्रोसीड देयर विद दिस अंडरस्टैंडिंग दैट दिस मच यू नो. ठीक है, इसलिए आई एम स्पेंडिंग सम टाइम इन डूइंग दिस. इसके ऊपर पर्टिकुलरली कोई सवाल नहीं आएगा जो आज हमने स्टडी किया है, बट ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के ऊपर डेफिनेटली सवाल आएगा जो फिर हम जब वेव्स पढ़ेंगे तब करेंगे. बट इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू सॉर्ट ऑफ विजुअलाइज एंड सी कि हो क्या रहा है, क्या चीज़ जा रही है ग्रुप वेलोसिटी से, क्या चीज़ जा रही है फेज वेलोसिटी से. तो वो विजुअलाइज करने के लिए दिस अंडरस्टैंडिंग इज़ गुड. ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं आज यहीं पे मैं रोक देती हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 7 हो गया है. मुझे एक और टॉपिक करना था जो इसी से रिलेटेड था, जिसमें आई हैड इसमें मैंने कंसिडर किया है सिर्फ दो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स जिनका ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी था. देन आई वांटेड टू कंसिडर वन मोर जनरल केस जिसमें आई हैव n नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर्स और सबका जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 की रेंज में है. ठीक है, तो दे आर लाइक ओमेगा 1 प्लस अ लिटिल बिट मोर प्लस अ लिटिल बिट मोर प्लस अ लिटिल बिट मोर, एंड ऐसे करके यू रीच ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी. सो यू हैव लॉट्स ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर्स जिनका फ्रीक्वेंसी कोई एक फिक्स्ड अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है. सो यू स्टार्ट विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 एंड यू slowly you are increasing frequency each time till you get omega 2, and then you are adding all these harmonic oscillators and you want to see कि उसमें what kind of resultant motion you would expect. So in topics पर as such formula based question नहीं आता है. इस वाले टॉपिक में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उस पर आ सकता है, बिकॉज वहाँ पर ओमेगा 1 ओमेगा 2 मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था. इसमें एक बीट्स का क्वेश्चन आ सकता है, वो भी फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कुछ है नहीं उसमें. तो बेसिकली साउंड वेव्स में ऑलरेडी बीट्स पढ़ा ही होगा, तो वही बस एक न्यू मतलब दो फ्रीक्वेंसी न्यू 2 माइनस न्यू 1 फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होगा दैट विल गिव यू द बीट फ्रीक्वेंसी एंड द बीट पीरियड. सो वो भी फिर नेक्स्ट क्लास में स्लाइटली पढ़ लेंगे. एंड actually I wanted to start Lissajous figures in the next class, but ठीक है, so maybe Lissajous figures फिर 2 lectures में चला जाएगा, but it's okay I think. ठीक है, so these are initial classes, so I thought that maybe these concepts will be repeated. So that is what I like about this course. Okay, so whatever you will learn in oscillations, that understanding will help you in understanding waves
and then what you will understand in waves, that will help you in understanding optics. So that flow is like good for this particular part. Okay, so I'll stop the class today. So you have your I think modern physics class at 7:30. ठीक है, तो आज इतना ही. ये होमवर्क प्रॉब्लम्स आप ट्राई कर लेना ये दोनों. if you have some problem in solving them, then I can discuss in the next class, or maybe I'll give you I've solved these, so maybe I'll give you the snapshot of the answers. ठीक है, so thank you for your time, and Thank you, ma'am. good night to क्या बोलूँ, good evening, I don't know. ठीक है, bye bye. Good Good evening. evening, ma'am. Bye bye, ma'am. Bye.